آج ایک بہت اہم دن ہے یعنی عید پینتیکوست۔ تو اس کے لیے جو حوالہ ہم دیکھنا چاہیں گے وہ اعمال 2 باب پہلی 4 آیات ہیں۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلوں کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی۔ پینٹیکوسٹ کا گہرا مطلب سمجھنے کے لیے ہمیں موسیٰ کے وقتوں میں جانا پڑے گا، کیونکہ پینٹیکوسٹ کی عید جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں یہودیوں کی 7 عیدوں میں سے ایک عید تھی۔ جب وہ مصر کی غلامی سے نکلے تو بحر کلزم کو عبور کرنے کے بعد وہ تیسرے مہینے یعنی سیوان کے مہینے میں کوہ سینا پر پہنچے، اور جب وہ کوہ سینا پر گئے تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وہ سارا پہاڑ جو ہے وہ دھوئیں اور گرج اور آگ سے بھر گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ عہد باندھا تھا۔ یہ وہ پرانا عہد تھا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کا جنم دن تھا۔ اور جنم دن کیسے ہوا؟ آگ اور دھواں اور گرج۔ اور خروج 19 باب 18 آیت میں لکھا ہے، اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر ان پر اترا، اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل گیا۔ ہم نے اعمال کی کتاب میں بھی دیکھا ہے کہ جہاں وہ بیٹھے تھے وہ جگہ ہل گئی، آگ کے شعلوں کے پھٹتی ہوئی زبانیں اور زور کی آندھی کا سناٹا، کیونکہ اعمال کی کتاب میں ایک نیا عہد باندھا گیا تھا، وہ نیو کوننٹ تھا۔ جب پرانا عہد باندھا گیا وہ بھی آگ کے ساتھ، اور جو نیا عہد باندھا گیا وہ بھی آگ کے پھٹتی ہوئی زبانوں کے ساتھ۔ 1500 سال کے بعد عبرانی کیلنڈر میں پھر ایک ایسا دن آیا، اور یہ وہی دن تھا جب پینٹیکوسٹ کا روز تھا کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں مجسم خدا ہو کر آئے اور انسانوں کے درمیان رہے۔ سال ہر سال یہودی 7 عیدیں مناتے تھے، اور پینٹیکوسٹ کی عید جو ہے وہ 7 کے درمیان تھی۔ 3 عیدیں اس سے پہلے اور 3 عیدیں اس کے بعد ہیں، اور یہ سارا کچھ ہم اخبار 23ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ پہلی 3 عیدیں جو تھی وہ یسوع کی پہلی آمد پر پوری ہوئیں، درمیان میں یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عید پینتیکوسٹ ہوئی، اور باقی 3 عیدیں جو ہیں وہ ابھی مسیحی تاریخ میں پوری نہیں ہوئیں، وہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد پر ہوگا۔ لیکن 32 AD یعنی 32 AD سن 32 بعد از مسیح جو عید پینتیکوسٹ ہوئی وہ بہت فرق تھی۔ اس کا مطلب بھی فرق ہو گیا، کیونکہ اس دن روح القدس نازل ہوا اور نیا عہد باندھا گیا، اور پطرس اس وقت دلیری کے ساتھ کھڑا ہوا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے جو آخری بات کہی تھی وہ اعمال پہلا باب 8 آیت ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم، یہودیہ، سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے۔ اور وہی پطرس جو چند روز پہلے ایک لونڈی سے ڈر کر یسوع کا انکار کرتا ہے، اسے دلیری ملی، اسے قوت ملی، اور آج ہمیں بھی وہی قوت چاہیے تاکہ ہم خداوند کے گواہ بن جائیں۔ جب پطرس گواہ بن گیا تو ایسا ہوا کہ وہ دلیری سے کھڑا ہوا، اور اس نے انہی لوگوں کے درمیان یہ گواہی دی اور کہا، اے بنی اسرائیلی، جس یسوع کو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھوں مصلوب کروایا، خدا نے اسے جلایا۔ اور اس کے اس سرمن کے بعد بہت سے لوگ اس کے پاس آئے یہ کہتے ہوئے کہ ہم کیا کریں، ہم کیسے نجات پائیں؟ تو پطرس نے کہا، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے منہ موڑو، خداوند یسوع کے نام پہ بپتسمہ لو، تم پر تازگی کے دن آئے تو روح القدس تمہیں انعام میں ملے گا، جیسا کہ
انہیں انعام میں روح القدس ملا، وہ 120 لوگوں کی جماعت جو خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بالا خانہ میں اکٹھی تھی، ان لوگوں کو 10 دن کے بعد، خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 10 دن بعد روح القدس ملا، کیونکہ وہ 10 دن تک ایک دل ہو کر دعا میں ٹھہرے رہے۔ تو خدا نے ان کی دعا کو سنا اور وہ قوت کا لباس انہیں ملا جس کا وعدہ خداوند یسوع مسیح نے کیا تھا، کیونکہ یسوع نے کہا تھا میرا جانا ضرور ہے تاکہ میں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں، یعنی روح حق، جو دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ وہ پہلی بارش تھی جو ہم اعمال 2 باب میں دیکھتے ہیں، یہ وہ پہلی بارش تھی روح القدس کی جو ان پر ہوئی۔ اور آج ہم جو آخری دنوں کی کلیسیا، اخیر زمانے کی کلیسیا ہیں، ہم پچھلی برسات کا انتظار کر رہے ہیں۔ کسان پہلی برسات اور پچھلی برسات کا انتظار کرتا ہے۔ ہمیں پچھلی برسات کی ضرورت ہے تاکہ روحوں کی فصل کاٹی جا سکے۔ اعمال کی کتاب میں جس عید کا ذکر ہے وہ اس کو شابوت عید شابوت بھی کہتے ہیں، فیسٹ آف شابوت۔ اور ان 7 عیدوں کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہمیں اخبار 23 باب اور اعمال 2 باب کو اکٹھا دیکھنا پڑے گا۔ یہودیوں کی 7 عیدیں جن کا میں نے ذکر کیا، ان میں پہلی عید فصح ہے، دوسری عید فطیر، تیسری پہلے پھلوں کی عید، اور پہلے پھلوں کی عید یہ پہلے پھل جو ہیں وہ جو کے پھل ہیں، چوتھی عید پینٹیکوسٹ، 5ویں یوم کفارہ، 6ٹھی نرسنگوں کی عید اور 7ویں خیموں کی عید۔ ہم باری باری دیکھیں گے کہ یہودی ان عیدوں کو کیسے مناتے تھے، اور جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے عبرانیوں 8 باب 5 آیت میں کہ وہ نقل اور عکس کی خدمت کرتے تھے۔ یہ ہمارے سامنے ایک تصویر پیش کرتے تھے کہ دراصل ان عیدوں کا مقصد کیا ہے اور مسیحی تاریخ میں یہ عیدیں کیسی ہوں گی۔ ہم اخبار 23 باب پہلے دیکھیں گے کہ عید فصح کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے۔ اخبار 23 باب 5ویں آیت میں لکھا ہے، پہلے مہینے کی 14ویں کو شام کے وقت خداوند کی فصح ہوا کرے۔ فصح کے لیے بے عیب برا لیا جاتا تھا جس سے 10ویں تاریخ کو خریدتے تھے اور 14ویں تاریخ کو اسے قربان کیا جاتا تھا۔ 4 دن تک اسے چیک کیا جاتا تھا کہ وہ بے عیب ہو، بے عیب نر یا سالہ برا، یہ قربانی کے لیے۔ اور اگر ہم پچھلی پکچر میں جائیں تو خروج 12 باب میں خداوند نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ عید فصح کرو، اس سے پہلے کہ تم مصر کی غلامی میں سے نکلو، ہر خاندان کے پیچھے ایک برا لو اور اسے 10ویں تاریخ کو، پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو خریدا جاتا۔ 4 دن اسے کاہن چیک کرتے اور 14ویں دن وہ قربان ہوتا تھا۔ 14 پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو عید فصح منائی جاتی تھی۔ اس کے بعد آتی ہے عید فطیر، جسے فیسٹ آف انلیونڈ بریڈ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر ہمیں اخبار 23 باب اس کی 6 سے 8 آیات میں، اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطیر ہو، اس میں تم 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانا، پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اس میں تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور 7ویں دن تم خداوند کے حضور آتشین قربانی گزارنا، اور 7ویں دن پھر مقدس مجمع ہو، اس دن تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ یہ عید فطیر تھی، بے خمیری روٹیوں کی عید۔ یہ 14ویں کی رات کو یعنی 15ویں کی شروع میں یہ شروع ہو جاتی تھی عید۔ تیسری عید جو ہے وہ تھی پہلے پھلوں کی عید، اور اس کا ذکر آپ اخبار 23 باب 9 سے 10 آیات میں دیکھتے ہیں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ اور اس کی فصل کاٹو، تو تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا ایک پولا
काहिन के पास लाना। ये ईद फसा के तीसरे दिन से शुरू होती थी, पहले फलों की ईद। ये जौ की फसल की कटाई के वक्त, और वो पूले काहिन काट कर उनके साथ जाता था, खेत से पूले लेकर आता और हैकल में लाकर उसे हलाने की कुर्बानी करता था। और उसे हलाता इस तरह था कि वो पूले लेकर और वो ऊपर खुदावंद को पेश करता और उसे हलाता था। और इसका एक खास मकसद है जो हम आगे चल के देखेंगे। फिर चौथी ईद, 3 ईदें जो हैं ये यीशु की पहली आमद पर पूरी हो गई। चौथी ईद, ईद पेंतिकोस्त, जो आज का दिन है, एबार 23 बाब 15 से 17 में इसका हुक्म था। और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना, तब तुम खुदावंद के लिए नज़र की कुर्बानी लाओ। तुम अपने घरों से एफा की 2/3 हिस्से के वजन के मैदे के 2 गिरदे हिलाने की कुर्बानी के लिए आना। अब ये जो है ये भी पहले फलों की ईद है, लेकिन ये पहले फल गंदम के फल थे। जो पहले फलों की ईद थी वो पूले जो काहिन लाकर हिलाता था वो बारले या जौ की फसल की थी, अब गंदम की फसल की है। और वो फसल के दाने जो ग्रेन्स थे उनको लेकर सारों को इकट्ठा करता है एक जगह, फिर उसका आटा या मैदा बना के उसके 2 गिरदे बनते और उनको पकाया जाता और उसमें खमीर भी डाला जाता था। और ये भी हिलाने की कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होता था। और काहिन इस तरह उन्हें लेता और खिलाता था। अब याद रखें कि इसमें बहुत से दाने इकट्ठे पीस कर मिलाए जाते थे और इसमें खमीर भी होता था, क्योंकि इंसान रूह और बदन का है। और हमने इसी तरह खुदा ने हमें कबूल किया रूह और बदन में। और 2 गिरदे इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि एक यहूदी और एक गैर कौमों में से, यानी जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया था इमाल 2 बाब में, तो उसमें यहूदी भी और गैर कौमें भी में से भी लोग थे और सब ने इनको हिलाया जाता खुदा के हुजूर, ताकि सब ने इकट्ठे होना है। उससे अगली ईद है नरसिंगों की ईद। ये ईद यीशु की दूसरी आमद पर होगी, जब पोशीदा आमद होगी, जिसे रैप्चर भी कहते हैं। तो लिखा है थस्सलुनीकियों के खत में कि उस वक्त खुदावंद खुद ललकार और मुकर्रब फरिश्ते के साथ आएगा। लेकिन पुराने अहदनामे की ईद एबार 23 बाब उसकी 23 से 25 आयात, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह, 7वें महीने की पहली तारीख तुम्हारे लिए खास आराम का दिन हो, उसमें यादगारी के लिए नरसिंगे फूंके जाएं। तुम उस दिन कोई खादमाना काम ना करना और खुदावंद के हुजूर आछीन कुर्बानी गुजराना। छठी ईद यौम कफ़ारा, और ये हर साल का सरदार काहिन पूरी कौम के लिए, उससे पहले कि पूरी कौम के लिए कफ़ारा दे, वो अपने ख़ानदान के लिए कफ़ारा देता था और उसके बाद पूरी कौम के लिए कफ़ारा लेकर पाक तरीन मुकाम में साल में एक बार जाता और वो लहू पाक तरीन मुकाम में अहद के संदूक के ऊपर मर्सी सीट पर वो छिड़का जाता, कफ़ारे के सरपोश पर छिड़का जाता और खुदा खून को देखकर 1 साल के लिए उनके गुनाह ढांप देता था। गुनाह मिटते नहीं थे। खुदा का शुक्र करते हैं कि यीशु के खून से हमारे गुनाह मुकम्मल तौर पर धुल जाते हैं। हरचंद वो किरमजी भी हों तो बर्फ की मानद हो जाते हैं। ये साल में एक बार होता था। अगले साल फिर गुनाहों के कफ़ारे के लिए सरदार काहिन को ये करना पड़ता था। और 7वीं ईद जो यहूदियों की है उसे ईद ख़याम कहा जाता है या झोंपड़ियों की ईद। और इसका जिक्र आप एहबार 23 बाब 23 से 34 में देखते हैं। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह, उसी 7वें महीने की 15वीं तारीख से लेकर 7 दिन के लिए ईद ख़याम होगी। पहले दिन मुक़द्दस मजमा हो, तुम उस दिन कोई खादमाना काम न करना
तुम 7वें दिन बराबर खुदावंद के हुजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना, 8वें दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और फिर खुदावंद के हुजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। तो हम देखते हैं पहली 3 ईदें जो हैं वो पहले महीने में थी और आखिरी 3 ईदें जो हैं वो 7वें महीने में, और इन दोनों में एक काफ़ी बड़ा गैप था, और ये गैप एक मकसद के लिए था जो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। अब हम देखें कि मसीही तारीख में ये इन ईदों का क्या मकसद है। ईद फसा, आप सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी फसा अपने शागिर्दों के साथ खाई थी, और जब खुदावंद यीशु मसीह शाहाना तरीके से यरूशलेम में दाखिल हुए थे, और वो पाम संडे का रोज़ था, वो पहले महीने की 10वीं तारीख थी, और जिस दिन खुदा का बरा हमारी खातिर कुर्बान हुआ था वो 14वीं तारीख थी। ईद फसा जो पुराने अहदनामे की ईद थी, जो नकल और अक्स था, वो पूरी हुई खुदावंद यीशु मसीह के वक्तों पर, जब वो हमारी खातिर फसा का बरा कुर्बान हुआ। और वो वक्त था जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए। लोग अपने बरे ला रहे थे कायनों के पास ताकि उनसे चेक करवाएं कि वो बेऐब हैं या नहीं। तो खुदावंद यीशु मसीह भी दाखिल हुए, लोग उन्हें चेक करें, ये वो शख्स है जिसने कहा था कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। आखिरी फसा का जिक्र आप मत्ती 26 बाब उसकी 17 से 25 आयात में पढ़ सकते हैं। मसीही तारीख में ईद फसा पूरी होगी। ईद फतीर जो है वो बेखमीरी रोटियों की, खमीर जहाँ पर आता है वो या तो इंसान को जाहिर करता है या फिर वो गुनाह को जाहिर करता है। तो पहला कुरिन्थियों 5 बाब 7 से 8 आयात में लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गूंदा हुआ आटा बन जाओ, चुनांचे तुम बेखमीर हो क्योंकि तुम्हारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से। 2 ईदें हमने देखी जो मसीही तारीख में जो पूरी हो चुकी है। तीसरी है पहले फलों की ईद, जैसे कि हमने देखा कि ये पहले फल जौ के फल थे, और उस वक्त काहिन वो फूले लेकर हिलाता था, उसे खुदा के सामने पेश करता था हिलाने की कुर्बानी। इसी तरह हमारा पहला फल जो मुर्दों में से जी उठा वो खुदावंद यीशु मसीह है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसके 15 बाब 20वीं आयत में लिखा है, लेकिन फिल वाक़या यीशु मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए उनमें पहला फल हुआ। और जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, 3 दिन वो कब्र में रहे, तीसरे दिन वो बड़ी कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठे। यही वो दिन था जब काहिन किसान के साथ खेत में जा रहा था ताकि ये फूले लेकर आए और खुदा के हुजूर पेश करें। और खुदावंद यीशु मसीह जो पहला फल है उसने अपना आप खुदा को पेश किया। अगर आपको याद हो तो मरियम मगदलीनी से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मुझे अभी मत छूना क्योंकि मैं अभी तक बाप के पास नहीं गया। अभी तक उसने ये पहला फल खुदावंद यीशु मसीह जी उठने वालों में से ये पहला फल था। तो ये पहले फलों की ईद थी जो खुदा के सामने पेश किया गया। और फिर चंद दिनों बाद हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने तूमा से कहा कि हाँ मेरे हाथों को देखो, इसमें उंगलियां डाल के देखो, वो छेद देखो, मुझे छू लो, क्योंकि अब वो खुदा के पास अपना आप पेश कर चुके थे। ये पहला फल था। और जहाँ पहला फल आता है वहाँ उसके बाद है कि उसके बाद और भी फल होंगे। पहले फल के बाद दूसरा, तीसरा और बाकी फल। तो हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है वो पहला फल है, और उसके आने पर बहुत से ईमानदार भी जी उठेंगे और वो बाकी फल होगा। 3 ईदें मसीही तारीख में पूरी हो चुकी। चौथी थी ईद पेंतिकोस्त, जो हमने देखा कि ये वो ईद थी जिसका जिक्र हमने इमाल 2 बाब में पढ़ा कि उस दिन भी एक नया अहद बांधा गया
कुव्वत मिली, पतरस को दिलेरी मिली, और जब वो खड़ा होकर बोलने लगा, सब गैर जुबानों में बोलने लगे, रूह कुदस से भर गए। तो बाहर लोगों ने कहा ये तो ताज़ा मै के नशा में है, लेकिन उसने कहा नहीं, ये ताज़ा मै का नशा नहीं, बल्कि ये वो बात पूरी हुई जो योएल 2 बाब उसकी 28 आयत में लिखा है कि उसके बाद मैं अपनी रूह हर फर्द बशर पर नाज़िल करूँगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियाँ नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे और जवान रोया देखेंगे, बल्कि उन अयाम में मैं तुम्हारे लौंडों पर और गुलामों पर और लौंडियों पर भी अपने रूह को नाज़िल करूँगा। सो ये पेंटिकॉस्ट के बाद ये सब कुछ हुआ, रूह कुदस नाजिल है, पहला फल मसीह खुदा को पेश किया गया, और हमारे लिए एक बड़ी उम्मीद कि हम भी उसके बाद वक्त आने पर हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। सो 5वीं तारीख जो नरसिंगों की ईद है, वो अभी तक मसीही तारीख में पूरी नहीं हुई। ये उस वक्त होगी जब खुदावंद यीशु मसीह की पोशीदा आमद होगी। यौम कफ़ारा भी अभी मसीही तारीख में पूरा नहीं हुआ। ये ज़करिया 13 बाब पहली 3 आयात अगर हम पढ़ें तो ये उसके मुताबिक होगा। और आखिरी ईद जो झोंपड़ियों की ईद है या फीस्ट ऑफ टैबरनेकल है, खैमों की ईद, ईद ख़याम, ये उस वक्त होगी जब खुदा का खैमा इंसानों के दरमियान लगेगा। मुकाशफा 21 बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और उनका खुदा होगा। सो अब हम समझ सकते हैं कि इमाल 2 बाब में जो लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, यानी कि ईद पेंतिकोस्त पहले ही से थी, पहले ही एग्जिस्ट करती थी, लेकिन जब वो दिन आया तो फिर से अब मैं दोहराना चाहूँगी कि सन 32 बाद अज़ मसीह ये एक ख़ास दिन था। ये पुरानी पेंटिकोस्ट की ईद से बहुत मुख्तलिफ था, क्योंकि रूह कुदस नाज़िल हुआ और वो वादा जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से किया था वो पूरा हुआ, उनको कुव्वत मिली। अब ये पेंटिकोस्ट का दौर जो है ये उस वक्त तक जारी रहेगा, जारी और सारी रहेगा, जब तक कि नरसिंगों की ईद नहीं होती। आज हम पेंटिकोस्ट के दौर में हैं। आज हमें भी उस कुव्वत की ज़रूरत है, जो उस पाकरू की कुव्वत जो दिलेरी देती है, जो हमें दिलेरी देती है, जो हमें कुव्वत देती है, जो रूह कुदस से कुव्वत मिलती है कि हम उसके गवाह बन जाएं, जैसे कि पतरस बना। और इस कुव्वत के बगैर हम खुदा के गवाह नहीं बन सकते। आज मुझे और आपको उस कुव्वत की ज़रूरत है। अगर आज दिन तक ये कुव्वत आपको नहीं मिली तो ज़रूरी है कि ये कुव्वत हासिल करें। पेंटिकॉस्ट जारी है जब तक नरसिंगों की ईद नहीं होती। आज भी पेंटिकॉस्ट है। खुदा चाहता है कि हम में से हर एक इस कुव्वत को ले और उस पर गवाह बन जाए, और ना सिर्फ यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक जाएं। और ये वो कुव्वत है, ये वो ज़ोर है, जैसा कि ज़करिया की किताब में खुदा ने ज़ुरबाबेल से कहा कि ये ना ज़ोर से और ना तवानाई से बल्कि मेरे रूह से हो जाएगा। आज मेरे अजीज़ों, हमारे सामने चैलेंज है कि इब्तदाई कलीसिया ने उस रूह को हासिल किया, उस कुव्वत को हासिल किया, और वो पहली ही सदी में उस वक्त की सारी दुनिया तक, नॉन वर्ल्ड तक पहुंच गए। आज की कलीसिया को इस कुव्वत की ज़रूरत है। आज हमें भी ऐसी कुव्वत चाहिए जो हमें हिला दे, आग से फटती हुई जुबानें हम पर आ ठहरें और हम अंदर से बाहर तक हिल जाएं और कुव्वत हासिल करें, और उस ज़ोर से और उस कुव्वत को हासिल करते हुए आगे बढ़ें। क्योंकि ना तो वो जो हमारे सामने पहाड़ है, ना तवानाई से और ना अपनी कुव्वत से हिल सकते हैं, बल्कि खुदा के रूह से। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आज दिन तक आपको ये कुव्वत नहीं मिली तो आज मौका है, ये बख्शिश जारी और सारी है। अपने गुनाहों से तौबा करें, खुदावंद के नाम पे बपतिस्मा लें, तो रूह कुदस आपको इनाम में मिलेगा और आप पर ताजगी के दिन आएंगे।
खुदा सबको बड़ी बरकत